अवस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवै सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां बेशुमार अथाह अगंत अतोलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धार करता साहिबे सहाबा जोत रूप हराब महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत अज दे महान गुरमत समागम बहुत ही सत्कारयोग शख्सियत गुरु भावना नाल जुड़िया होया हिरदा सचखंड वासी सरदार प्रीतम सिंह जी ओबे राय जी की याद विच साडे बहुत ही सत्कारयोग बीबी अमृत कौर जी अते उन्हां दे सुपुत्र बच्चियां बच्चे सारा परिवार ते आप सारे मिल के गुरु याद नाल जुड़ के हाजरियां भर रहे हो। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दे पावन दरबार दे कीर्तनियां तो बड़े रसक अंदाज विच साहिब जी दी अमृत बाणी दा गायन आप सरवण कर रहे सी और वाकई समय का बोध नहीं रहा। माहौल इस तरह का सिरजा गया सतगुरु जी वालों इस तरह आभास होने लग पाया जिवें श्री दरबार साहब बैठे ही कीर्तन सुन रहे हो। बहुत आनंद आप जी ने माणिया। कुछ समा होर सतगुरु जी की अमृत विचार राहीं गुरु बचना का सांझ बने मन गुरु चरना नाल जुड़ सके। एकाग्रता अदब ते आनंद की दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी भर रहे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे चरण कमलां ते टिकिया है कि साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया।
ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਚਰਨ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਤਿਹ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਰ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਚੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਝੁਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਪਰਪੰਚ ਮਹਿ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਮਤ ਕੋ ਤਰੋ ਗੁਮਾਨਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਵੇ, ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ तमाम ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਠਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਣ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ, ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖੇ ਨੇ, ਮੰਨੈ ਨਾਉ ਸਹੀ ਜਿਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਰ ਚੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਚੰਦੋਆ ਖਿਵਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜੀੜੇ ਓਲਾ ਨਾਮ ਕਾ, ਅਵਰ ਜੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨੋ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਭਾਉ ਹੈ ਜਾਮ ਕਾ। ਜੈਸੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਘੰਟੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਸਾ ਝਾੜੂ ਜੈਸਾ ਕੁਝ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਵਰਨ ਸਮਾਜ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਮਹਾਂ ਬੋਲ ਨੇ, ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਬਰੇਜ਼ ਬੋਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰ। ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟ ਬੰਡਲਾ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤਾ, ਨਿਤ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਕਿਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਨਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁਟ ਬੰਡਲਾ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤਾ, ਨਿਤ ਹੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਲੋਕੀ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਣ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਲ 'ਚ ਟੱਲ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰਹਿ ਡੰਡੌਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਚਤੁਰਵੇਦ ਵਕਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹਨ, ਹਕੀਕਤ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਬ ਕਰਹਿ ਡੰਡੌਤ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਬਾਸ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ
दो बोल एक विद्वान पुरख ने आखे ने कि उसका सब कुछ था गुजरा, उसका दिल और जान गुजरी, गुजर सकता नहीं कोई जहां से गुजरी मां गुजरी। बड़ा बिखम रस्ता, बड़ा भयानक मौसम। हुण जद असी सत्कारयोग वीर जी ने किसानां दा जिक्र कीता ना, तो ठंड विच उन्हां नूं ठरदिआं होइआं देखदे आ ते वो इतिहास नज़रां दे सामणे आ जांदा किवें पोह दीआं भयानक सरद रातां विच श्री आनंदपुर साहिब जी दा किला त्याग के इस ख्याल नाल नहीं कि फिर मुड़ के भी आउणा है, इस ख्याल नाल और इस सच्चाई नूं समझदिआं होइआं कि हुण सीस लग जाना है। ते दो छोटे सपोतरिਆਂ ਨੂੰ गल नाल ला के माता गुजरी एक बैल गड्डी विच बैठ के ते किले तो बाहर आए सी। तां उसने बोल आखे ने उसका सब कुछ था गुजरा, उसका दिल और जान गुजरी, गुजर सकता नहीं कोई जहां से गुजरी मां गुजरी। उन्हां वर्गा भी जीवन होर किसे दा दिखाई नहीं पैंदा। मैं आप जी दे 2-4 मिनट मात गुजरी जी दे भेटा करना ते कराना चाहूँगा। जिस दिन कश्मीर दे ब्राह्मण श्री आनंदपुर साहिब आए सन ते उन्होंने पुकार की बई साडा धर्म खतरे विच है। ते श्री गुरुदेव पातशाह जी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां ने जो सवाल किते, लंबी गलबात मैं नहीं इत्थे करना, इशारे मात्र कहना चाहता। आप सारे गुरु मेहर सदका दानाब पुरुष संगत विच तशरीफ फरमाओ। तुहानूं दुनिया ते इस तरह का कोई महान पुत्र नहीं मिलेगा जो जे सुपुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हथ जोड़ के कह दिता, गुरु पिता जे सीस देण नाल महापुरुखां दी कुर्बानी नाल इन्हां दा धर्म बच सकदा है तो फिर ठीक जगह आ गए, थोड़ी चरण शरण विच आ गए। ऐसा पुत्र दुनिया दे इतिहास च नहीं मिलेगा, अवतारां दे इतिहास च नहीं मिलेगा, पैगंबरां दे इतिहास च नहीं मिलेगा जो जे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपना पिता सदके करन लई तैयार हो गए। सच जानना साध संगत, तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निध आवें धाए, सब थाई होए सहाय। गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी वर्गा पिता भी तिन्ना लोकां च नहीं मिलेगा जिन्होंने ये नहीं कहा बई लाल जी तुसी हाले छोटी अवस्था विच हो, नाले मैं कल्ला थोड़ी हाँ, थोड़ी माता गुजरी जी भी हैगे ने ते मेरी माता नानकी जी भी है। 2-4 दिन इन्हां नूं रिहायश देवो, लंगर देवो, बस्तर आदक देवो, इन्हां नूं ठंड भी इन्हां दी दूर होवे और इन्हां दा हिरदा भी निग महसूस करे ते 2-4 दिनां बाद सलाह करके फिर जवाब दे देवो। सतगुरु जी का बचन है, बियो पूस न मसलत धरै, जो किस करे सो आपे करे। ते मुस्कुरा के कहन लगे गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज, लाल जी तुसा आख्या ते फिर हो गया। 9 साल का पुत्र नहीं मिलेगा जेड़ा पिता घरों चले ना ते ओ पल्ला पकड़ लैंदा भी मैं भी नाल जाना। ते 40-40 पिछों फोन करता है भी पापा घर कदों आना है, उहदा मन नहीं लगता। ते पिता सदके करने वास्ते तैयार हो जाए 9 साल की शरीरक अवस्था विच। ते उह जिहा पिता श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज वर्गा जेड़े दूजी गल ना करन ते आखण लाल जी तुसां कहा ते फिर हो गया है। ना इहो जिहा पुत्र
तिन्हां लोकां 'च कोई मिलेगा ते ना इहो जिहा कोई पिता मिलेगा जिहो जे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज ते जिहो जे पिता गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज। ते घर आ गए महाराज, दीवान विच उठ के ते घर आ गए ते आके पहले मात नानकी जियां नूं नमस्कार कीती। मां पूजण योग हो। हज़रत मुहम्मद साहब ने एवें नहीं कहा बई मां दे कदमां विच जन्नत हुंदा है। जो मां दा सत्कार करदे ने, मतलब यह है बई जो माता पिता दा सन्मान करदे ने उन्हां दा जीवन स्वर्ग तो ज़्यादा वधिया बन जांदा। स्वर्ग उन्हां दे कदमां विच। माता नानकी जियां नूं नमस्कार कीती ते श्री मात गुजरी साहिबा जी दे मोढे ते हथ रख के साहिब आखण लगे, गुजरीए असां भलके जाना है। ते माता जी सदके होए, स्वामी जी तुसी अज पहले दिन थोड़ी चले, तुसी कई वारी जांदे हो, संगतां दा भला करदे हो, नाम दा रंग चाढ़दे हो ते नाम नाल जोड़दे हो ते जम जम जाओ ते मैनू भी नाल लै चलो। ते साहिब कहन लगे, नहीं तुसां नहीं जाना, असां कल्लियां ही जाना है, पर उस तरह नहीं जाना जिवें बकाले तो असी पटना साहिब गए सी, आसाम गए सी, उस तरह नहीं जाना। तमतान आदक अस्थानां ते गए सी, उस तरह नहीं जाना। असी जाना है पर वापस नहीं आना। तैनू कोई इतराज तां नहीं? असी सीस देण दा बचन कर दिता। ते मात गुजरी जियां ने चरनां ते सिर रखिया ते महाराज दे चरण चुम लए। अखां विच दो मोटे मोटे आंसू भी आ गए ते हाथ जोड़ के इतना ही कहा, भला स्वामी जी जो तुहाडी रज़ा, तुहाडी रज़ा ही मेरी जिंदगी है, तुहाडी रज़ा ही मेरी बंदगी। फिर साहिब रुखसत लैके आगरा आदक अस्थाना तो होके दिल्ली पहुंचे ते सीस दिता। ते मात गुजरी जी रोज दिल्ली वाले पासे आउण वाले रस्ते वाल देखते सन, बई कोई आवे ते मेरे स्वामी दा संदेशा दे। साध संगत कोई आम बहुत गुरबत विच भी पत्नी होवे ना ते पति दा इंतजार करती रहती। बहुत साधारण जीवन वाली भी पति दा इंतजार करती रहती है। ते पत्नी होवे माता गुजरी वर्गी ते पति होवे गुरु तेग बहादुर साहिब वर्गा, ते इंतजार क्यों जा होवे, शब्दां विच बयान नहीं किया जा सकता। फिर एक दिन माता जी ने पछाण लिया बई ऐ जनता तो उही है जिहड़ा मेरे स्वामी जी दे नाल गया सी। भाई जीवन सिंह चमकौर दी गढ़ी विच शहीद होए। रंगरेटा गुरु का बेटा होने का खिताब मिलिया। ये तो वही जनता है जो मेरे स्वामी जी दे नाल गया सी। इसने सिर ते की चुकिया होया? ते लागे हो के पूछया, जनत्या तू दिल्ली तो आया है? ते भाई जनता जी दे नेत्रां विच भी जल सी। क्या हां विच सिर हिलाया। मेरे वास्ते लैके की आया है? भाई जनता दियां चीखां निकल गईयां, मां जो मैं तेरे लिए लियाया वो कदाचित कोई पुत्र अपनी मां वास्ते तो नहीं लिया सकता जो मैं लिया। इस तरह वो बस्तर विच कुछ लपेटिया होया माता गुजरी जी दे अगे कर दिता। उन्हां खोलिया ते देखिया होर कुछ नहीं है। उन्हां दे स्वामी तिन्हां लोकां दे मालक शहीद गुरु तेग बहादुर साहब जी दा धड़ नालों जुदा होया सिर है। उन्हां दी रसना तो फेरे बोल निकले, हाथ जुड़े, सीस सजदे विच आया ते इतना ही कहा, भला स्वामी जी जो तुहाडी रज़ा, तुहाडी रज़ा ही मेरी जिंदगी है, तुहाडी रज़ा ही मेरी बंदगी है। फिर ठंडे बुरज विच बैठे हुए सी।
संक्षेप में गुजारिश कर रहे हैं। पता चल गया भाई दोवें सपुत्रे जो मेरे सुपुर्द सन शहीदी हो गई। जपजी साहिब का पाठ किया, फिर जमीन ते सिर रखिया ते बोल फिर निकले, भला स्वामी जी जो थोड़ी रजा, थोड़ी रजा ही मेरी जिंदगी है, थोड़ी रजा ही मेरी बंदगी। हुक्म रजाई चलना, ये नाम सिमरन तो बिना नहीं आ, ये जप तो बिना नहीं आ। महाराज जी की जद मेहर होवे फिर अमृत वेले जागना नसीब होंदा है, सतसंग नसीब होंदा है, सिमरन नसीब होंदा है। ते फिर पता चलता है सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गल नहीं होती। नाल ही है सरहद, कोई दूर नहीं। नवाब मलेर कोटला ते कहण दा वजीर खान दे मन ते असर बनया सी बई उसने उच्ची आवाज विच कहा, नवाब साहब ई मासूम अस्त, ई ज़ईफ अस्त। ये सारी फारसी विच कार्रवाई लिखी हुई है उस दिन दी अदालत। ये बड़े मासूम ने, ये माता बुजुर्ग है। कतले मासूमा कतले ज़ईफा ना काबले गुनाहे ना काबले मुआफस्त। ये जड़ा बच्चों का बजुर्गों का कतल करना है, ये पार ब्रह्म परमेश्वर की बारगाह विच मुआफ नहीं होता। कतले मासूमा कतले ज़ईफा बारगाहे खुदा न काबले मुआफस्त। कहते ने उसने भी थोड़ा सिर हिला दिता बई कहता तो ठीक पिया, पर एक ऐसा सज्जन कोल खड़ा सी जिदे बस्तरां ते भी हरि ओम राम गायत्री मंत्र लिखे हुए सन। धर्म का अभ्यास सी नहीं सी, सिर्फ लिबास सी धर्म। उसने कहा मैनू इजाजत होवे, मेरी सजा मुआफ होवे ते मैं कुछ आखण दी गुस्ताखी करा। ते उसने जो बोल आखे इहदा नाम इतिहास विच सुच्चा आनंद करके आया, पंथ विच इहनूं झूठा आनंद कहंदे। उसने शब्द बोले, आखण लगा नहीं ई मैं मासूम अस्त, ई मैं ज़ईफ अस्त, ई फरजंदे मार अस्त, ई मादरे मार अस्त। श्री मात गुजरी साहिबा जी नूं जो उसने शब्दां नाल बयान किया, वो शब्द जबान ते लियाउंदियां होइयां जबान थर्रा जाती। बई ये सपोलीए ने, सप दे बच्चे ने, ये सप दी मां है, सप नूं जन्म दिता। गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे ते शहीदी हो गई। पर किधरे भी उन्हां दी जबान तो एक शब्द धर्म दे मनुखता दे खिलाफ नहीं निकले। बल्कि हुणे तुसी महाराज दी बाणी सुनदे पए सो, तेरा खिया मीठा लागै हर नाम पदारथ नानक मंगै। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे हिरदे विच नाम अमृत है, ते सड़दी हुई लोह ते बैठ के भी जबान तो कोई सड़दा होया बोल नहीं निकला, बल्कि धुन सुनाई पई, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदारथ नानक मंगै। ऐसे महान बुजुर्गों की याद विच जद असी जुड़ते हैं तो फिर वो याद गुरु नाल जोड़न वाली। मैनू बहुत मेरे हिरदे सतगुरु जी का शुकराना प्रगट होता है जब मैं ओबे राय जी नूं देखदा लोकां दीयां जिंदगियां बचाउंदियां होइयां, जरूरतमंदां तक गुरु का बख्शिया होया साजो समान पहुँचाउंदियां होइयां। माता जी बैठे ने, ये भागां वाले हैं। सरदार प्रीतम सिंह जी सचखंड वासी भागां वाले हैं जिन्हां दे घर विच महाराज ने ऐसे बच्चे दिते हैं।
जो मनुखता की सेवा लई मजहब नहीं देखते, किसी का की हैगा, भाषा नहीं देखते, पढ़िया अनपढ़िया नहीं देखते, तो सेवा में पहुँच जाते। मैं सतगुरु जी के चरणों च अरदास करता हाँ, इस परिवार में सरदार प्रीतम सिंह जी की बंदगी का, माता अमृत कौर जी की बंदगी का असर सदा ही बनया रहे, ते आउण वालियां पीढ़ियां भी सतगुरु जी के दरों निवाजिश लैके ते गुरु बख्शिया होया रस्ता, ये धर्म का अभ्यास है। मनुखता की सेवा करनी, जरूरतमंदा की सेवा करनी, ते अगे हो के परवाह ना करना। पिछे जे ओबेराय जी थोड़े ढिले हो गए सन, सारी दुनिया में अरदास, ते मैं भी तखत श्री हरमंदर जी पटना साहब अमृत वेले महाराज के चरणों च पहुँच के अरदास की, सच्चे पातशाह तेरे दर दे सेवा नाल जुड़े हुए तेरे बच्चे हैं, ते अपने बच्चों की राखी आप करो, ते गुरु अपने सेवकों की राखी करता, ते राखी गुरु कर रहा है, प्रमाणित किवें होएगा, पता किवें चलेगा भी मेरी राखी गुरु कर रहा है। उस वेले रसना तो नाम वाहेगुरु 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 उचारण होवे, बाणी का पाठ रसना ते आवेगा। उस वेले समझ लेना भाई गुरु राखी कर रहा है। महाराज ने सानू सबूत वजों ये बोल आखे ने, अपने सेवक की आपे रख है, तो जब आपे राखी करदा है तो फिर प्रगट ये होंदा है, सबूत ये होंदा है, पता इथों चलदा है, आपे नाम जपावे, जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठ तावे, सेवक को निकटी होए। सतगुरु पातशाह मेरा भरिया सरदार प्रीतम सिंह जी, माता अमृत कौर जी, ये ना ही बड़े प्रभावित कर रहे। प्रीतम का मतलब है परमात्मा जो सबनों प्रेम कर, ते अमृत का मतलब भी परमात्मा ही है जो मृत्यु तो रह। सतगुरु होर नाम की दात परिवार में बख्शे, चढ़दी कला नाल नवाजे। उन्हां दे सारे सहयोगी सरदार इकबाल सिंह जी IPS, सरदार जसवंत सिंह जी छापा, भाई कुलदीप सिंह जी और सारे गुरमुख प्यारे हाजरियां भर रहे हैं। साहिब सबनों मेरा नाल बख्शा नाल निवाजे। समा उच्चा होंदा जा रहा है, 2-3 मिनट सारे मिल के वाहिगुरु मंत्र का जाप करिए, फिर अरदास विच शामिल होवांगे। होर ज़्यादा समा मैं सेवा कर सकदा सी, पर भाई साहब ऐसे रंग विच आ गए कि समय का बोध नहीं रहा। महाराज इन्हों भी होर ज़्यादा प्रेम, कंठ की मिठास ते सतगुरु प्रति समर्पित रह के कीर्तन की दात बख्श के निवाजन। मैं आप सब लई अरदास करदा, थानू सबनों गुरु नाम की दात देवे, ते बेनती करदा आप सारे मेरे लिए अरदास करो भी मैनू भी गुरु नाम नाल जोड़े। आओ मिल के सारे 2-3 मिनट जपीए, फिर आनंद साहब जी का पाठ, ते फिर अरदास। इस तरह ही भुलां चुकां दी खिमा जरूर बख्श देना। एक पासे दास, एक पासे आप सारे। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।